mathematical expectation. What is mathematical expectation? Mathematical expectation are there are two types. First definition have discrete random variable, and the definition have continuous random variable. So we discuss the discrete random variable. If capital X is a discrete random variable, takes the values x1, x2, xn with probabilities pxi, that is I equal to 1 to n, matlab means that p1 have the probability of x1, okay, p2 probability have the x1, x1 have probabilities, x1 का probability क्या होगा px1, x2 का probability क्या होगा px2 और x3 का probability क्या होगा px3 up to n terms. Then mathematical expectation of discrete random variable x is defined as expectation of x equal to x1 px1 plus x2 px2 plus up to so xn pxn. इसको समेशन फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं i equal to 1 to n xi pxi, ठीक है. In general, if a random variable takes the values x1, x2, xn with probabilities pxi, where I equal to 1 to n, then the mathematical expectation of discrete random variable expectation of x equal to I equal to 1 to infinite xi pxi provided that as given, ठीक है. ये डेफिनेशन है. So next, if capital X is a continuous random variable, takes the values in the interval a comma b, where a less than b with probabilities denote probabilities density function fx. The mathematical expectation of the random variable capital X is defined ex equal to 0 a to infinite x fx dx. In general, if x takes all possible values with the probability density function fx in the interval minus infinite to infinite, then the mathematical expectation of continuous random variable is defined as expectation of x equal to क्या होगा minus infinite to infinite x fx dx provided as given, ठीक है. There are two definition of mathematical expectation. First one is discrete random variable, another is continuous random variable. So there are two property: addition theorem of expectation and multiplication theorem, right? So this addition theorem for expectation for discrete random variable, we have if x and y is discrete random variable, assuming values x1, x2, xn and y1, y2, yn respectively, pxi and pyj be the marginal probability function x and y, the pxy their joint probability function, then ex plus y equal to ex plus ey. ex plus y equal to क्या हुआ I equal to 1 to n और j equal to 1 to n xi plus yj. अब pxi दिया है, ठीक है. इसको हम लोग दो टर्म में डिवाइड कर दिए, देखो i के फॉर्म में और j के फॉर्म में अलग अलग. xi को 1 सेट कर दिया और yj को 1 सेट कर दिए. दे आर टू समेशंस. फर्स्ट समेशन में xi को पहले रखें और समेशन j इक्वल टू इसको किए. अनदर वे देखो ये है. उसके बाद देखो I इक्वल टू 1 to n xi pxi और j इक्वल टू 1 to n yj py. व्हाट इज ये एक्चुअली मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन पर लिखे हैं, ठीक है. फॉर्मूला है, इसको हम मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन में ये फॉर्मूला दिया हुआ है. इसको इस तरह लिख सकते हैं, इसको इस तरह लिख सकते हैं. तो वी हैव एक्सपेक्टेशन ऑफ x प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ y.
Similarly, multiplication theorem of expectation for discrete random variable. Multiplication theorem देखो, if x and y be two independent discrete random variable, then e x y equal to e x और e y होगा। प्रूफ पे उसी प्रकार देखो, let x and y be two independent discrete random variable with joint probability mass function pxi. Let px and py be the marginal probability function of x and y. Then marginal मतलब i और x और y को दो अलग साथ में लिख दिए, ठीक है। तो जॉइंट में फॉर्मूला लिख दिए, दैट इज मार्जिनल होता है, ठीक है। ई एक्स वाई इक्वल टू क्या होगा, आई इक्वल टू 1 to n, आई जे इक्वल टू 1, एक्स आई वाई जे पी एक्स वाई। ये क्या है देखो, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का डेफिनेशन देखो, ये है ना अबुल कलाम। यस सर। तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का फॉर्मूला जो है मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन में, ई एक्स इक्वल टू क्या होगा, समेशन ऑफ आई इक्वल टू एन एक्स आई पी एक्स आई। उसी प्रकार हम लोग कंटिन्यूअस में क्या होता है, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लिखते हैं। उसी प्रकार देखो यहाँ पर लिखा हुआ है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, देखो उसी प्रकार लिखें, आई एक्स वाई दो वेरिएबल है, तो हम लोग एक्स आई वाई जे पी एक्स आई, ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल आधार पर लिख दिए, ठीक है। तो इसको भी हम लोग दो पार्ट में अलग अलग लिख दिए, देखो। उसके बाद सिंस एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट, देन पी एक्स वाई, तो इंडिपेंडेंट होने से क्या होगा, पी एक्स वाई साथ में है तो अलग अलग पी एक्स और पी वाई अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। इसको समेशन फॉर्म में लिख दो, इसको इस फॉर्म में लिखो, इसको इस फॉर्म में आज लिख दो, दैट इज ई एक्स और ई वाई। प्रॉब्लम में देखो कुछ एग्जाम्पल we have discussed, let x be a random variable with probability density function x, values of x have 3, 6, 9 and there are probabilities 1 by 6, 1 by 2, 1 by 3। फाइंड ई एक्स निकालना है, ई एक्स स्क्वायर निकालना है और ई 2x + 1 का होल स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो फॉर्मूला प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी हम बता दिए हैं कि एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, कि समेशन ऑफ एक्स इनटू पी एक्स, ठीक है। समेशन फॉर्म है, मतलब देखो एक्स का वैल्यू क्या है 3, अब पी एक्स मतलब प्रोबेबिलिटी, 3 का प्रोबेबिलिटी क्या है 1/6, दैट इज देखो एक्चुअली योर क्वेश्चन हैव values of x, that is a had -3 minus left, so as given question we have right -3, so -3 1 to 1/6 plus second value क्या है x का 6 which probability 1/2 plus 9 which probability 1/3, इन तीनों को मल्टीप्लाई जोड़ दो तो क्या निकलेगा 11/2, ये तुम्हारा एक्सपेक्टेशन ऑफ x निकल गया। उसी प्रकार एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो क्या होगा, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर पी एक्स, एक्स स्क्वायर पी एक्स, तो क्या होगा उसी प्रकार देखो -3 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बनने से -3 का होल स्क्वायर इंटू कुछ प्रोबेबिलिटी है 1/6 प्लस अंदर इज 6 स्क्वायर प्लस इंटू 1/2 प्लस 9 स्क्वायर, वैल्यू देखो 93/2 निकल गया, है ना। सिमिलर वे एक्सपेक्टेशन ऑफ 2x + 1 का होल स्क्वायर, इसको एक्सपेक्टेशन देखो, इसको मतलब ब्रेक करो हम लोग, तो क्या होगा 4x स्क्वायर प्लस 4x + 1, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ 4x, इफ 4 तो कांस्टेंट बाहर निकाल दो, एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर, इफ 1 बाहर निकाल दो एक्सपेक्टेशन x + 1, एक्सपेक्टेशन ऑफ 1, तो क्या होगा एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर का वैल्यू क्या निकला हुआ 93/2 निकला हुआ है, एक्सपेक्टेशन ऑफ x का वैल्यू क्या निकला हुआ देखो 11/12 निकला, और एक्सपेक्टेशन ऑफ 1 दैट इज 1, सो दैट वैल्यू हैव 209। किधर है अजय कुमार सर -3 कैसे लिए सर? नहीं, क्वेश्चन वी हैव, क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ -3, ठीक है। क्वेश्चन -3 दिया हुआ, देखो ये -3 दिया हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन में हम यहाँ पे रेड कलर जो कलर दिया हुआ है इसमें माइनस लिखना छूट गया है, ठीक है। ओके सर। हाँ, तो प्रॉब्लम क्लियर ना, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कैसे निकाला जाता है
फॉर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल आधार पे, दैट इज द मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। ठीक है, क्लियर है मनीष कुमार? यस सर। सर ये वाला बताएं तो ये वाला समझ में आ गया है, ऊपर वाला फार्मूला है सब नहीं समझ में आ रहा था क्या क्या। ऊपर वाला फॉर्मूला जो है ना, एक्चुअली देखो ये तो एक्सपेक्टेशन आप ये तो जो वेरिएबल है एक्स वैल्यू पे है, ठीक है। उसी प्रकार हम लोग इसमें जो एडिशन थ्योरम जो होता है और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम जो भी जो ये फॉर्मूला दिया हुआ है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का, ठीक है। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्सपेक्टेशन एक्स प्लस एक्सपेक्टेशन वाई क्या से होगा, तो इसको एडिशन करेंगे तो क्या होगा, जो अलग अलग डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि 2 + 5 क्या होता है, 7 होता है। उसको उसी प्रकार इसको देखो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस वाई साथ में लिखे हैं, जब इसको प्रूव करेंगे तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई वो अलग अलग टर्म में हो जाएगा, दोनों का वैल्यू सेम है। ये थ्योरम है सब, ठीक है। सर सॉल्यूशन का सेकंड लाइन वाला में कैसे किए हैं? सेकंड लाइन ये, हाँ सर वही वाला। इसको बोल रहे हो? यस सर। हाँ सर यही। देखो फर्स्ट में क्या है, i = 1 to n एक्स आई, और सेकंड में क्या है, j = 1 to m, ठीक है। तो फर्स्ट समेशन जो है, फर्स्ट समेशन में क्या i ओनली फॉर i डिपेंड i = 1 to n, सो एक्स आई को पहले रखें, ठीक है। समेशन में फर्स्ट समेशन में एक्स आई, और सेकंड समेशन j = दिया हुआ है 1 to m। तो इसमें क्या है, j के लिए तो तुम्हारा क्या p ये जो वैल्यू दिया हुआ है इसमें x भी और y भी है, ठीक है। ये तुम्हारा रख दिए इसको j में, ठीक है। इसमें y j भी दोनों है। उसी प्रकार इसको ब्रेक कर दिए, देखो j को एक साइड में कर दिए और i को वन साइड कर दिए, i को एक साइड कर दिए। तो i में जो है समेशन में ये p x i y j साथ में है, जॉइंट में है, ठीक है। तो ये जॉइंट प्रोबेबिलिटी मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन जो होता है j = 1 to m p x y, ठीक है। ये जो इसका फॉर्मूला होता है p x i, ठीक है। j का फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, वो इन टर्म्स ऑफ एक्स आई के फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। ये फॉर्मूला है। यस सर। उसी प्रकार यहाँ पर देखो सीरीज i = 1 to n का फॉर्म में लिखा हुआ है इन टर्म्स ऑफ एक्स आई वाई दोनों है। इसको कन्वर्ट किया तो क्या हुआ, वाई जे का फॉर्म में आ गया, ठीक है। वही तुम्हारा मार्जिनल में होता है, जब मार्जिनल में अगर समेशन तुम्हारा जे के फॉर्म में रहेगा, ठीक है, वो इन टर्म्स ऑफ आई के इन टर्म्स ऑफ आई में कन्वर्ट होता है, और समेशन अगर आई के फॉर्म में दिया रहेगा तो इन टर्म्स ऑफ जे का फॉर्मेट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। यस सर। और इसका फॉर्मूला तो हम लोग जानते ही है क्या, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स हो गया, इसका फॉर्मूला हो गया तुम्हारा एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई, ठीक है। The previous theorem we have discussed the discrete and number variable way. अब नेक्स्ट थ्योरम है एडिशन थ्योरम एंड मल्टीप्लिकेशन थ्योरम बाय कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल। अब कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल में प्रूव करेंगे, लेकिन थ्योरम वही है, ठीक है। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू ई एक्स प्लस ई वाई, इसको हम लोग
कंटिन्यूअस में कैसे प्रूव करेंगे, तो उसी प्रकार प्रूव करेंगे। देखो इफ फंक्शंस ऑफ एक्स वाई इक्वल टू बी जॉइंट डेंसिटी फंक्शन अप टू कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल एक्स एंड वाई। कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल तो पढ़ा दिए हैं, डेफिनेशन दे दिए हैं, ठीक है। तो साथ में जब रहेगा तो क्या होगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा दोस्त, देयर आर टू इंटीग्रेशंस एक्स प्लस वाई dx dy, इसको अलग अलग देखो डिवाइड कर दिए एक्स और वाई के फॉर्म में। देखो अब ये भी स्टेटमेंट देखो क्लियर है कि नहीं है। एक्स को 1 सेट कर दिए एंड द इंटीग्रेशन में वाई रख दिए और होल के पावर dx। सिमिलरली देखो y को रखे, इसको इन टर्म्स ऑफ x में रखे इंटीग्रेशन होल ओवर dy। अब देखो ये जो इन टर्म्स ऑफ y में जब इंटीग्रेट इसको करेंगे, ठीक है, तो मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन में वो कन्वर्ट होकर fx में आ जाता है। देखो ऐसे सिमिलर वे ये जो इन टर्म्स ऑफ x में है, इसको मार्जिनल में लिख सकते हैं y के फॉर्म में। देखो y के फॉर्म में लिखे हैं, ठीक है। इसको जब इसका फॉर्मूला dx होगा और इसका फॉर्मूला क्या होता है y ey होता है, प्रूफ हो गया। ठीक है सर सेकेंड लाइन में सर बोलो। सर थोड़ा सा ऊपर कीजिए ना सर। यस सर, वहाँ पर सर डबल इंटीग्रेशन के बाद x प्लस वाई लिखे हैं और नीचे वाला में सॉल्यूशन में केवल एक्स वाई लिखे हैं और y वाला में लिखे हैं सर। तुम इसको बोल रहे हो, इसको बोल रहे एक हो स्टेप ऊपर सर। हाँ ये सर, हाँ सर, यस सर। हाँ। तो डबल इंटीग्रेशन जो है, डबल इंटीग्रेशन हम ऑलरेडी तुमको पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो माइनस इनफाइनाइट इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट इनफाइनाइट, इसको मल्टीप्लाई करो x प्लस वाई को, इस फंक्शन को, ठीक है। तो x को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये लिख दिए प्लस, ये प्लस तो ही है, देखो प्लस है, y को इससे मल्टीप्लाई कर दिए लिख दिए। दो इंटीग्रेशन डिवाइड हो गया दो पार्ट में, लेकिन दोनों ठीक है सर। हाँ डिवाइड दोनों तो है ना। यस सर। तो एज ए सिमिलर वे उसको हम इन जनरल के फॉर्म में इसको डेफिनेशन को प्रूव किए हैं, ठीक है। जब n टाइम्स हो जाएगा तो क्या आएगा, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन जो है एडिशन थ्योरम में क्या निकलेगा, वी हैव देखो एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 x2 x3 अप टू xn xr प्लस 1 जो भी रहो, एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 प्लस एक्सपेक्टेशन x2 प्लस अप टू xr, ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम देखो उससे प्रकार जो है कंटिन्यूअस अध्ययन पर आधार पर देखो स्टेटमेंट हुई इफ एक्स एंड वाई आर डिपेंडेंट independent continuous random variable with joint probability density function fxy, then exy equal to ex plus ey, ठीक है। बाय डेफिनेशन e यस सर। इक्वल टू क्या होगा, डेफिनेशन में जो है मास इनफाइनाइट इनफाइनाइट एक्स वाई एफ एक्स वाई, ये तो जॉइंट प्रोबेबिलिटी, ये तुम्हारा डेफिनेशन है, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला हुई है। सिंस एक्स एंड वाई इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल देन फंक्शंस ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एफ एक्स एफ वाई, ठीक है। इस इंटीग्रेशन को हम लोग अलग अलग फॉर्म में लिखो, देखो इसको साथ में लिख दिए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में, कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल में लिख, ये है ना, एफ एक्स को एफ वाई साथ में है, इसको लिख दिए इसे। अब इस इंटीग्रेशन को दो पार्ट में लिख दिया, देखो एक dx का फॉर्म में लिख दिया और y के फॉर्म में लिख दिया, ठीक है, दैट इज एफ ई एक्स और ई वाई, ठीक है। आप देखो इस
if x is a random variable and a and b are constant, ठीक है, then expectation of ax plus b equal to क्या होगा, a into expectation of x plus b provided all expectation exist, ठीक है। तो मैं ये x plus b equal to क्या होगा, एज ए कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल को देखो डेफिनेशन, मास इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट ax plus b into fx dx, ठीक है। तब देखो इसको हम ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, एक कांस्टेंट है बाहर निकाल दो, एक कांस्टेंट बाहर निकाल दो, माइनस इनफाइनाइट इनफाइनाइट x इंटू एफ एक्स डी एक्स प्लस सेकंड में क्या प्लस b को बाहर निकाल दो, कांस्टेंट है माइनस इनफाइनाइट इनफाइनाइट एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। तो अब ये जो इंटीग्रेशन जो है ये तुम्हारा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का फॉर्मूला हो गया, और इसका जो इंटीग्रेशन है कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के आधार पर 1 होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ 1 दैट इज 1 होता है, ठीक है, वो लिख दिया। प्रूफ हो गया, क्लियर है कि नहीं, बोलो प्रूफ सो है जी। यस सर। इसको अगेन रिपीट हो गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तुम्हारा मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन है, अब बोलो कहाँ नहीं समझे, कुछ दिक्कत है तो बोलो। एनीवन स्टूडेंट? सर सेकेंड लाइन समझा दीजिए ना फिर से। सेकंड लाइन कौन सा बोलो, इसे पूछ रहे हो? सर सेकेंड लाइन, हाँ सर वही वाला। कंटिन्यूअस, एक्चुअली देखो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का डेफिनेशन जो है, ठीक है, एफ एक्स कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के फॉर्म में हम लोग कैसे लिखते हैं, क्योंकि ये दो वेरिएबल एक्स और वाई है, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल आधार पर हम लोग लिख सकते हैं ना, एक्स वाई इंटू दिस, इस कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल डेफिनेशन को देखो, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, ये जो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल एक्स एफ एक्स जो है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स होता है, ठीक है, इसी को देखो ऐप जो है, ऐप है सफिक्स में क्या दिया है, एक्स दिया हुआ है ना, एक्स दिया हुआ है, तो एक्स दिया हुआ है, इसी हम लोग स्मॉल एक्स इंटू एफ एक्स हो गया, ठीक है, और ये एफ वाई जो दिया हुआ है कैपिटल में देखो, तो वह तुम्हारा ये वाई आ रहा है, देखो देखिए एफ एक्स के लिए हम इंटीग्रेशन में लिखेंगे हम लोग एक्स इंटू एफ एक्स, देखो ये जो एक्स वेरिएबल है तो एक्स इंटू एफ एक्स, और इसको इन कैपिटल में लिखा हुआ है, इसको हम लोग इंटीग्रेशन फॉर्म लिखेंगे तो साथ में वाई, इसको नहीं लिख, इसको तुम लोग
लिख सकते, आगे पीछे किया हुआ लग रहा हमको इसमें। वन प्रॉब्लम, अनदर प्रॉब्लम हम वी हैव डिस्कस, एक्चुअली हम शेयर कर रहे हैं क्वेश्चन को, है ना। एक प्रॉब्लम सॉल्व कराएंगे तुम लोग को, यस उसको हम शेयर कर रहे हैं, रुको। दिखा दे रहा है? हेलो। यस सर Okay, so another problem we have discussed, the diameter of an electric cable, capital X, ठीक है, is assumed to be continuous random variable with probability density function fx equal to the fx has given 6x into 1 plus 1 minus x, that is values of x have 0 less than x less than 1, ठीक है। Check the above is probability density function and determine the number of b का वैल्यू निकालना, ठीक है। such that probability of x less than b, probability of x greater than b दिया हुआ, ठीक है। तो फॉर फर्स्ट क्वेश्चन के लिए 0 लेस देन x लेस देन 1, एफ एक्स इज का वैल्यू क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन निकालने के देयर आर टू कंडीशन होता है ना, क्या होता है, एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्यों, x लाइज बिटवीन जो भी दिया हुआ है x का वैल्यू 0 1 के बीच में जो भी वैल्यू हम लेंगे वो एफ एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई। सेकंड कंडीशन, जो लिमिट दिया हुआ 0 to 1 में वो एफ एक्स का वैल्यू 1 होना चाहिए, देखो 0 to 1 एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इसका वैल्यू 1 निकाल दिया, एफ एक्स इज गिवन, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन क्लियर, हेंस एफ एक्स इज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ठीक है, ऑफ ए रैंडम वेरिएबल एक्स। फर्स्ट क्लियर, क्वेश्चन क्लियर। सेकंड क्वेश्चन, डिटरमाइन द ए नंबर बी सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन बी, प्रोबेबिलिटी एक्स इज ग्रेटर देन बी, ये इज गिवन। इसको हम लोग डिस्क्रीट रैंडम कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल में क्या होगा,
कि x का अपर लिमिट b है तो 0 to b f(x) dx। इसका क्या b x का लोअर लिमिट b है और अपर लिमिट क्या है 1। 1 कैसे हुआ? क्योंकि fx का जो रेंज है 0 to 1, अपर लिमिट में 1 में है ना, तो 0 to 1, b to 1, ठीक है। इस सारा वैल्यू को ऐसे पुट कर दो और x उसमें b का वैल्यू निकलेगा, तो b इक्वल टू 1/2 इज ओनली वैल्यू लाइंग बिटवीन 0 और 1। क्लियर है कि नहीं बोलो? सर लिमिट 1 कैसे निकाले सर? है ये 1 कैसे ऊपर सर ऊपर हाँ बोलो ये ये इन हाँ 1 कैसा है? एक्चुअली प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन निकालने के लिए फंक्शन दिया हुआ, फंक्शन हैज गिवन, तो हम लोग को दिखाना है कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है कि नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को दिखाने के देयर आर टू कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन f(x) इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि जो x का वैल्यू जितना भी रेंज दिया हुआ है 0 से 1 दिया हुआ है, मतलब कि x का वैल्यू कुछ भी लेंगे हम 0 और 1 के बीच में कुछ भी लेंगे, वो सारा वैल्यू x का वैल्यू ऐसे पुट करोगे तो f(x) का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा कि नहीं होगा? तो फर्स्ट कंडीशन क्लियर हो गया। सेकंड कंडीशन के लिए 0 to 1 f(x) dx का वैल्यू 1 होना चाहिए। तो देखो 0 to 1 f(x) का वैल्यू सॉल्व करोगे तो 1 होना चाहिए। तो दो देयर आर टू कंडीशन satisfied, hence the f(x) is the probability density function। इधर है तो इसको इंटीग्रेट करके देखेंगे ना सर, x इंटू 1 - x को। हाँ, तो ये तो इंटीग्रेशन लिखा हुआ है 0 to 1 f(x) dx लिखा हुआ है, देखो इसको सॉल्व करोगे तो 1 आ जाएगा तुमको। ठीक है सर। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन निकालने के लिए देयर आर टू कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन f(x) इज ग्रेटर देन 0, तो f(x) इज ग्रेटर देन 0 तो हो रहा है कि f(x) जो दिया हुआ क्वेश्चन में दिया हुआ है उसमें x का वैल्यू 0 और 1 के बीच में दो, तो सारा f(x) का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। सेकंड वन इज 0 to 1 में f(x) dx का वैल्यू पुट करोगे तो ये 1 हो जाएगा। तो फर्स्ट कंडीशन क्लियर हो गया, f(x) dx इक्वल टू प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के लिए हमें दो कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ता है, वो तो क्लियर है। सेकंड प्रॉब्लम जो दिया हुआ है b का वैल्यू निकालना है, तो b का वैल्यू निकालने के लिए एज गिवन दिया हुआ है, इसको 0 to b कर दिया f(x) dx और b to 1 f(x) dx सॉल्व कर दो, हो गया। क्लियर है? इसमें इस सेकंड प्रॉब्लम को दिक्कत है सेकंड पार्ट में? किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है बोलो, टाइम खत्म हो जाएगा, जल्दी बोलो। ठीक है, वी लेफ्ट द मीटिंग। एनीवन किसी को कुछ बोलना है? और 2 मिनट है। अब्दुल कलाम अजय कुमार किसी को पूछना है? No, sir. ठीक है, सो वी लेफ्ट द मीटिंग।